जय प्रसाद जया प्रसाद के लिए पिताजी, उनकी सेवकाई के लिए हम आपके आभारी हैं। पिताजी, आज हम चाहते हैं जो उनके द्वारा सेवकाई की जा रही है यूट्यूब के द्वारा, और हमारा भाई रुबेन जो इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, आप उनके साथ रहो और होने दीजिए बाप, इस सेवकाई के द्वारा आपकी महिमा हो, इसलिए आप हम पर अनुग्रह कीजिए और हर बात में आप हमारी सहायता कीजिए। आपके इन दोनों दासों को प्रभु जी आपका स्वर्गीय अभिषेक दीजिए, और जो भी वचन प्रभु जी आज आपके लोगों के लिए आपने ठहराया है, इस सेवकाई के द्वारा आप पूरा कीजिए, प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर हेब्रोन हाउस ऑफ प्रेयर बड़ौदा के द्वारा प्रभु जी ये जो लाइव हो रहा है बाप, उसमें आप विशेष सहायता कीजिए, और जहाँ भी प्रभु जी लोग इस वचन को सुनेंगे, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने में सहायता कीजिए। आप दया कीजिए प्रभु जी, आपकी इन दोनों दासों को आप प्रभु जी विशेष सहायता कीजिए, हर अंधकार की शक्ति को बांध दीजिए, डिस्टर्बेंस को बांध दीजिए। तो मसीह के नाम से ला रहे हैं, सुन और ग्रहण कीजिए बाप, आमीन। Amen. Can I go? Yes. I have great pleasure to be with you this evening time. आज शाम के वक्त आप सबके साथ मेरी संगति हुई, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। Even though it may not be a face-to-face meeting, but it is a online virtual meeting, even then I thank and praise the Lord for this opportunity that God has given to minister the word of God. एक दूसरे के सामने अगर हम मिलते नहीं है तो भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें यह समय दिया ताकि हम वचन की ओर देखें और बल पाए। So for today evening meditation, I have chosen the word from Galatians 6 chapter from 7 and 8 verse. आज शाम के मनन के लिए मैंने वचन को सुना है गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 7 पद। We will read that verse, Galatians 6 chapter 7 and 8 verse. गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 7 पद हम पढ़ेंगे। I am reading in here in my language. You can read in your own languages wherever you are there. भाई अपनी भाषा में पढ़ेंगे, और हम लोग जहां पर बैठे हैं हमारे पास जो भी धर्मशास्त्र है जो भाषा में, इसमें हम पढ़ेंगे। Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever man soweth, that he also shall repay. वही काटेगा। For he that soweth to his flesh shall also reap of the flesh corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. 7 and 8 verse. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। Shall we look to the Lord for his grace and mercy? प्रभु की ओर देखेंगे उसकी अनुग्रह और उसकी दया के लिए। Gracious God, Heavenly Father, we thank you and praise you for this evening time you have given to us. Lord, meet on virtually on the online ministry. We thank you and praise you for the church at Hebron in Baroda. We thank you for the brothers who are ministering there. Thank you, Lord, for the grace that they have given to me to share a word from your holy, Lord, Bible. We pray that, Lord, you will speak to each one of us from your heavenly throne. Yes, Lord, I confess I do not have anything to give unto your children unless you speak to me and you give your word to me. I will not be able to give it to your children. So I pray that, Lord, you will help me to understand your word and also give your word
according to the need of your people. Lord, thou only be with me, hide me behind the cross. Lord, let the Spirit of God, Lord, speak to each one of us, Lord. Lord, thou only anoint me with thy Spirit and lead me, guide me, and Lord, thou may be exalted in our midst. Thou may receive all the glory and honor, not any man, but thou may receive it. Lord, hear our prayer in the name of our Lord. Amen. आमीन। So here we have read verse 7 and verse 8. It is written like this. Yeah. यहाँ पर हमने वचन को पढ़ा 7 पद में। Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। So we will see first what the word is telling to us. हम पहले देखेंगे वचन हमारे से क्या व्यवहार करता है। Lord is speaking to us saying, be not deceived, do not be deceived. परमेश्वर का वचन हमें बताता है हम धोखे में न रहे। Many times we think that we are very clever. We are by our ways, by our actions, we think that we are deceiving God. That's what the word of God says. परमेश्वर का वचन बताती है कि कई बार हम अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं, ऐसा प्रभु का वचन बताती है। So many times when we deceive people, those people are mocked, or when we mock them, they are deceived. और जब हम लोगों की मश्करी करती है, ठट्ठा में उड़ाते हैं, तो वे लोग वहां पर धोखा खाते हैं। So many times with our ways, with our way of life, we think that whatever we are doing, it is okay with me. God is not seeing. God cannot do anything to me. हमारी जीवन शैली से हम ये बात को महसूस कराना चाहते हैं कि हम जो भी करते हैं परमेश्वर उससे खुश है, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम हमारी रीति नीति से जीने का प्रबंध करते हैं। Many times, because whenever we go astray, whenever we sin, the sin is not punished immediately. We think that God is not seeing, God is not punishing, so it doesn't matter. कई बार हम सोचते हैं जो कुछ भी हम गलतियां करते हैं या पाप करते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, और परमेश्वर जल्द से जल्द हमें शिक्षा भी नहीं करता, तो हमको लगता है सब कुछ बराबर चल रहा है। Because we are in the grace period, God doesn't want that anybody should perish. और हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर की ये इच्छा और मनसा है कि हमारा नाश न हो। We are not living in the Old Testament days where the grace of God was not available to man, and because of that, men used to be punished immediately. पुराने नियम में हम देखते हैं कि वहां पर जब पाप करते थे तब उसी समय शिक्षा आती थी, वैसे समय में हम जी नहीं रहे हैं। But when you see the further verses here, लेकिन अगर हम इस वचन को और आगे बढ़कर देखें, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. और यहाँ पर प्रभु का वचन बताती है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। It is a natural phenomena. और ये प्राकृतिक रूप से ही हो रहा है। When there is a action, there is also a reaction also. जहां पर किसी प्रकार का कार्य होता है, इसका वहां पर प्रतिभाव भी आता है। When you sow, you have to reap. आप अगर बोते हैं तो उसकी कटनी भी होती है। So whatever lifestyle you are living in this world, you are in a way sowing something in this world. Whatever lifestyle you are living in this world, you are sowing something in this world. और इस संसार में जो कुछ भी हम बोते हैं, whenever we are doing something, we are sowing something in the world. हम जो कुछ भी करते हैं, इसका मतलब यह है हम उस संसार में कुछ बो रहे हैं। That's why we are seeing the word of God says, if a man sows in the flesh, he will reap also in the flesh. और इसलिए परमेश्वर का वचन बताती है कि हम देह में जो कुछ भी बोते हैं, देह में भी उसकी कटनी करेंगे। Those who are not saved, और जो इस प्रकार से उद्धार पाए हुए नहीं है, they are sowing
say they are sowing in flesh. वे लोग अपनी देह में वहां पर बोते हैं। And whoever is born again, whoever has accepted Lord Jesus Christ, और जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया है, he is also sowing, और वो भी बो रहा है, but he has to find out what seed he is sowing. लेकिन उसको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि वो क्या बो रहा है। See, if you see in Galatians 5th chapter, और गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय में अगर हम देखें, if you see from verse 19 onwards, 19 से आगे अगर हम पढ़े, Paul is writing to the Galatians about the works of the flesh. पौलुस जो शरीर के काम है उसके बारे में वहां पर बताता है। If you read 19, 20 and 21 verse, there are about 17 sins are mentioned in that place. 19 से लेकर 21 तक There are 17 sins which are yeah. 17 से लेकर 21 पद में 17 प्रकार के जो देह के काम है उसके बारे में जिक्र किया गया। And he also says, I have told you in the past also about these things. और पौलुस वहां पर कहता है, मैंने इसके बारे में आगे भी आपको बताया है। So those who are not born again, these people are knowingly or unknowingly committing these sins and they are sowing these seeds. और जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, वो जानने अनजाने में ये जो देह की जो काम है और देह के जो बीज है वो बोते हैं। In 22nd and 23rd verse, 22 और 23 पद में हम पढ़ते हैं, we are seeing the fruits of the Spirit. हम आत्मा के फल को देखते हैं। So those who are born again, जिसका नया जन्म हुआ है, if they are walking in the Spirit, और वो अगर आत्मा में चलते हैं, they are sowing the seed of the Spirit. वो आत्मा का फल देखते हैं। So when both these people are sowing, they have to reap also. और वो दोनों बो रहे हैं और दोनों को कटनी करना होगा। So we will have to see in the 8th verse, we are seeing, for he that soweth to his flesh, he shall reap also in the flesh corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. गलतियों की पत्री 6 अध्याय और 8 के अनुसार शरीर के लिए अगर बोते हैं तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। So there is a consequence of every deed we are doing in this world. इस संसार में जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। We have to keep this in mind, whether we are born again or whether we are not born again. इस बात को हमें स्मरण में रखना पड़ेगा, क्या हमारा नया जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। We have to know that there is a consequence for each of our sin. इस बात को हम भली भांति समझ ले कि जो कुछ भी हम पाप करते हैं इसका परिणाम तो आएगा ही। Those who are born again, we may think that yes, our sins are forgiven. जिसका नया जन्म हुआ है वो मान सकता है कि हमारे पापों की क्षमा तो मिल गई, We don't have the judgment. और हमारे ऊपर न्याय शासन नहीं आएगा। But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताती है, in Hebrews, we are seeing that God judges us according to our deeds. और हमारे कार्य के अनुसार इब्रानी के वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारे कार्य के अनुसार हमारा न्याय होगा। Just to see that word, I want to bring that word to your remembrance. Hebrews, इब्रानियों की पत्री 12th chapter, 12 अध्याय, and we'll see this verse 5th verse. और उसका 5 पद, पढ़िए भाई। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे भुड़के तो साहस न छोड़। So the chastening of the Lord will come upon us as father chasteneth his son. जैसे पिता अपने पुत्र को चेतावनी देता है, शिक्षा करता है, वैसा परमेश्वर भी हमारे को वो इस प्रकार की ताड़ना में से गुजरने को करता है।
though the consequences are both for the unbelievers and also for the believers also. जो लोग मसीही नहीं है उनके लिए, जो मसीही है उनके लिए भी ये परिणाम तो होना ही है। For them, the judgment is there, in this world and also in the world to come. इस संसार में और आने वाले संसार में इसका न्याय होने वाला है। But God gives us opportunity to what to call to cleanse ourselves or to set right our life when we come around the table every week. और प्रति सप्ताह जब प्रभु यीशु मसीह की मेज के पास आते हैं, प्रभु हमें मौका देता है, हम एक दूसरे के साथ, प्रभु के साथ ये समझौता करें और जो कुछ भी ऐसी गलत बात है उसको हम हमारे जीवन में से दूर करें। So we are seeing here our Lord, even Lord Jesus Christ used to use this terminology of the agriculture or farming in order to drive the meaning of what he is speaking. और हमारे को परमेश्वर का वचन वो उदाहरण के रूप में खेत में जो किसान जिस रीति से हल को चलाता है और जो कुछ भी बोता है, इसके द्वारा प्रभु हमें कुछ कहना चाहता है। Because we can understand it very clearly, very nicely. ताकि हम बहुत ही अच्छी रीति से इसको समझ सके। So it is a natural phenomena. Once you sow a seed, you have to cut it also, or you have to reap it. और प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो जो कुछ भी हम बोते हैं हम कटनी भी करते हैं। Secondly, second rule or second formula of this sowing and reaping is, और बोने का और कटनी काटने का जो दूसरा नियम है वो ये है कि we sow little but we reap large or in a great measure. हम जो बीज बोते हैं वो तो संख्या में कम है, लेकिन इसके जो फल आते हैं बहुत ही मात्रा में होते हैं। So this is even true for both physical as well as a spiritual person. ये शारीरिक रूप से, दैहिक रूप से और आत्मिक रूप से दोनों के लिए ये सही बात है। So we should keep this in mind when we are meditating the word of God. जब परमेश्वर के वचन की ओर हम मनन करते हैं, उसके ऊपर ध्यान करते हैं, इस बात को हम स्मरण में रखें। So if you want to reap something, अगर आप कुछ कटनी करना चाहते हैं, if you want to reap what you call a good harvest, अगर बहुत ही अच्छी कटनी करना चाहते हैं, then you have to sow also. तो आपको बीज बोना तो पड़ेगा। So when you are sowing, you are not sowing something bad seeds, but you sow good seeds. जब हम बीज बोते हैं वो गलत बीज नहीं होता, अच्छे बीज होते हैं। So today we will see from the word of God 5 kinds of seeds what we can sow in this world. तो परमेश्वर के वचन से आज शाम को हम देखना चाहते हैं 5 प्रकार के बीज जो बोए जाते हैं। You can sow when you are in this world, these 5 kinds of seed we'll see from the word of God. जब इस संसार में है तो 5 प्रकार के बीज बोए जाते हैं, इसके बारे में परमेश्वर के वचन से हम अभी देखना चाहते हैं। First seed that we can find it in Matthew's Gospel 13th chapter. मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में पहला प्रकार का बीज के बारे में बताया गया है। Here our Lord Jesus Christ is speaking about the sower, parable of the sower. और यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह वो बीज बोने वाले का उदाहरण देता है। So here when the disciples came to him and asked him about the meaning of this parable, और जब इस उपमा के बारे में प्रभु के चेलों ने प्रभु से पूछा, then Lord Jesus Christ said like this, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि this seed is nothing but the word of God. ये बीज दूसरा कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन है। Luke's Gospel 8th chapter लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय and 11th verse. और उसका 11 पद। Now the parable is this, the seed is the word of God. और ये जो उपमा दी गई है बीज को, वो तो परमेश्वर का वचन है। So for the first seed that we can sow in this world is the word of God. और पहला जो बीज है परमेश्वर के वचन के हिसाब से वो परमेश्वर का वचन है। The Lord Jesus Christ, when he was leaving this world, he commanded his disciples, go ye into the world and preach the gospel, and those who believe, make them my disciples. In Matthew's Gospel 8th chapter 19th and 20th verse. आप संसार में जाओ
preach the gospel. सुसमाचार प्रकट करो। That is the commandment of Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। In Matthew's Gospel 28, 19th and 20th verse. मत्ती रचित सुसमाचार 28, 19 और 20 वचन के अनुसार। Even in Mark's Gospel 16th chapter, last 15 and 16 verse also we see that same commandment is given. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके अंतिम 2 पद में भी प्रभु यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी कि सुसमाचार जाकर प्रकट करो, वचन को बो। So it is the commandment to each one of us. इसीलिए हमारे में से प्रत्येक को यह आज्ञा दी गई है that we have to sow the seed of the word of हमें God. परमेश्वर का वचन जो बीज के समान है हमें बोना है। We need not worry about what is going to happen, इसका क्या होगा इसके बारे में हम फिक्र न करें, because the word of God says in 1 Peter 1st chapter 23rd verse that we are saved through the incorruptible word of God. और इसलिए पहला पत्रस पहला अध्याय 23 के अनुसार परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि अविनाशी ऐसी रीति से हमारा उद्धार किया गया। So this word is an incorruptible word. ये जो वचन है वो बिल्कुल नाश नहीं होता। Because it is incorruptible word, it is going to bring forth fruit. ये अविनाशी वचन है, इसके लिए उसको फल आने वाले ही है। It will bring forth its fruit because God will do it. इसके फल आएंगे क्योंकि परमेश्वर इसको फल देगा। Because it is an incorruptible word. और ये अविनाशी वचन है। We have to sow the seed of the word of God irrespective of whether we are going to receive the fruits or not, because God's word is incorruptible, it is going to bring forth fruit. परमेश्वर का वचन अविनाशी है, इसके लिए हमारा यह फर्ज बनता है कि उसके परिणाम की चिंता किए बिना हम उसको बोए और फल देना परमेश्वर का काम है। So we see also in Isaiah 55 5th chapter, और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55 अध्याय में भी हम ये देखते हैं 10th verse, 10 पद, there God is telling to his people, परमेश्वर अपने लोगों से ये बता रहा है। in the 10th and 11th verse I am reading, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereunto I sent it. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय 10 और 11 पद ये बताती है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। So here we are seeing Lord is giving the example of the rain which comes from heaven. और यहाँ पर परमेश्वर हमें इस बात का उदाहरण देता है, वो जो वर्षा वो ऊपर आकाश से हमारे ऊपर गिरती है। So when it comes upon the earth, जब इस संसार में पृथ्वी पर ये गिरती है, what does it do? वो क्या करती है? It watereth the earth and maketh it bring forth the buds. और यहाँ पर उसको भिगाने से वहां पर उसको नरम करती है। And it brings forth bud and also food to the sower of the seed. और भूमि पर पड़कर वो उपज उपजाते हैं। And Lord says, my word is even like that. और परमेश्वर कहता है मेरा वचन भी वैसा ही है। Whatever word I am sending, whether it is through a small God servant or small man, the word is not going to go wide, but it will bring forth its fruit. इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर हमें बताता है कि उसका जो वचन है प्रभु के दास के द्वारा क्यों ना वो छोटा हो, प्रभु के मुख से निकला है तो वो फल दिए बिना उसके पास वापस नहीं लौटेगा। That is the commandment of God. So we need to do that irrespective of our results. परमेश्वर की ये आज्ञा है, इसीलिए इसके परिणाम की चिंता किए बिना हमें इस वचन को, ये परमेश्वर के बीज को बोना है। Ecclesiastes 11th chapter, और सबोपदेशक उसका 11 अध्याय
and verse 4 और उसका 11 पद and 6 also. और उसका 6 पद भी। We will read 6 verse first. In और the उसका morning sow thy seed, in the evening withhold not thine hand, for thou knowest not whether shall it prosper, either this or that, or whether they both shall be alike good. तबोपदेशक उसका 11 अध्याय और 6 पद, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। So the word of God says that we need to sow the seed in the morning, in the evening, in the afternoon. Every time we get the time to sow the word of God. परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर स्पष्ट बताती है, भोर को या सांझ को या दिन के कोई भी भाग में हमें वो बीज बोना है। It is our responsibility to sow the seed. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बीज को बोए। See, the word of God also says that you do not know what is going to happen to that. और परमेश्वर का वचन हमें ये बताती है, हमें मालूम नहीं कि वो कौन सा फल पाएगा और सफल होगा। It will bring good harvest. हो सकता है कि अच्छी कटनी होगी। So we need to sow the seed always, irrespective of the weather, irrespective of the day, irrespective of the night. हवामान क्या है, तापमान क्या है, दिन कैसा है, इसकी चिंता किए बिना हमें बीज को बोना है। That's what verse 4 is telling to us. और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये बताती है। 4th verse. और 4था पद, He that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds shall not reap. यहाँ पर कहता है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। We need not look for the season to sow the seed of God. परमेश्वर का वचन जो बीज है उसको बोने के लिए हमें वायु की ओर ताकना नहीं है। We need not to wait for the season that a good time will come, then only I will go and preach the word of God. और वो ताकते रहना वायु की ओर और बादलों की ओर देखता रहना परमेश्वर के बीज को बोने के लिए, ये हमारा काम नहीं है। We will not be able to reap a good harvest if we are lookers, if we are seeing for the right season to sow the seed of God. अच्छी ऋतु के लिए हम बाट देखते रहे तभी हम प्रभु का वचन बोएंगे, तो हम वहां पर अच्छी कटनी नहीं कर सकेंगे। So we need to look into this issue, that first seed that we need to sow in this world is the word of God. और पहली बात जो हमें करना है वो परमेश्वर के वचन बीज के रूप में हमें बोना है। See, when we do the will of God or sowing the seed of God according to the commandment of God, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार जब हम बीज बोते हैं, what is going to happen to us? तो हमें क्या होगा? See, kindly turn to Isaiah 55 again. आइए एक बार फिर से यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55 अध्याय We'll read 12th verse. और उसका 12 पद हम पढ़ेंगे। For he shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and the trees of the field shall clap their hands. क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे, तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएगी। When you are doing the sowing the word of God, there will be joy in you, there will be peace in you, and there will be what you call lot of joy around you. जब आप परमेश्वर का वचन को बोते हो तो आप में पूरा आनंद होगा, आप बहुत ही हर्षित होंगे। That's what the word of God says in Psalms also. भजन संहिता में भी परमेश्वर का वचन हमें यही बताती है। See, turn to Psalms 126. आइए भजन संहिता और उसका 126 अध्याय, and we will read 6th verse, please. और हम 6 पद को पढ़ेंगे। He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए,
परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। 5th verse also, they that sow in tears shall reap in joy. 5 पद, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। Dear brothers and sisters, when you are doing the will of God, sowing the seed of the word of God, you may come across seasons where you are troubled, where you are in tears. प्रिय भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन को बोते हो, संभव है कि आपके ऊपर मुश्किलें आएगी और आप आंसू भी बहाने लगोगे। But when you see the outcome of that sowing, the souls that you are saving, लेकिन जो बीज आपने बोया है, जब वो फल देगा, उसका परिणाम को अगर आप देखोगे, what happens there? Then the joy cometh in us. तब क्या होता है? वहां पर आनंद प्रकट होता है There will be rejoicing in that place. और वो स्थान में हमें हर्ष और आनंद दिखता है। And the word of God says, they shall come back with sheaves in their hands. परमेश्वर का वचन बताती है, जय जयकार करते हुए वे लवने पाएंगे। First thing we saw is the word of God. पहली बात जो हमने देखी वो तो परमेश्वर का वचन है। Secondly, दूसरी बात, the second seed we can sow in this world is इस संसार में जो दूसरा बीज हमें बोना है वो तो ये है, that the blessings that the Lord has given to us. परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है वो दूसरे को बांटना। That is what we can sow in this world according to, see, turn to 2 Corinthians 9th chapter. दूसरा कुरिन्थियों और उसको 9 अध्याय के अनुसार हम इस बात को देख सकते हैं। There we'll read 6 and 7 verse, please. और उसका 6 और 7 पद हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians 9th chapter. दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद। I am reading 6th verse. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. 6 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। If you see the background of this chapter, और इस जो अध्याय है उसकी जो पश्चात भूमिका अगर हम देखें, 2 Corinthians 9th chapter 1st verse, it is written, for as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय और उसके 1 पद के अनुसार, अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं। So these people, Paul is writing to them in order to take out some money or some finance for those who are in need. परमेश्वर का दास पौलुस इस कुरिन्थियों के लोगों को लिखते हुए कहता है, आपके पास जो कुछ भी है, इसमें से जिसको आवश्यकता है उसके बारे में वो यहाँ पर लिखता है। So here we are seeing that giving is an act of the God. और यहाँ पर हम देखते हैं जो कुछ देने की बात है वो तो परमेश्वर की ओर से है। Whatever God has blessed us, जिस बातों से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, we need to share with others. हम दूसरे के साथ उसको बांटे। That's what the word of God is telling to us. परमेश्वर का वचन हमें यही बताती है। If you see in Acts chapter 11, there we are seeing that there was a need, there was famine in the land of Judea. और प्रेरितों के काम 11 अध्याय में हम देखते हैं यहूदा में अकाल पड़ा था। So when the Judea, और यहूदा में when there was a famine, जब वहां पर अकाल पड़ा, the church at Antioch, they sent gifts to the people, poor people in Jerusalem. और अंत्योक के जो कलीसिया के लोग थे, उन्होंने यरूशलेम के दरिद्र लोगों के लिए कुछ न कुछ सहाय भेजी। See Acts 11 chapter 29 and 30th verse. प्रेरितों के काम 11 अध्याय 29 और 30 पद के अनुसार, Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto their brethren which dwelt in Judea, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Paul. तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदा में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया
और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। So we are seeing they determined to send some help to the people in Judea. और यहूदा में कुछ भेजने के लिए उन्होंने इसका निश्चय किया, निर्णय किया। The poor people will be always there in our midst. हमारे बीच में हमेशा दरिद्र लोग तो रहने वाले ही है। It may be even in the churches also, there are people who are in need of what to call financial help. और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कलीसिया में भी जिसको वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, We need to do it according to the grace that God has given to it. परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमें प्रदान किया है उसकी मात्रा में, उस प्रमाण में हमें दूसरे को मदद करना है। How we need to give? कैसी रीति से देना है? That's what Paul is telling in this word. और इस वचन के द्वारा पौलुस हमें इस बात को सिखाता है। Giving is nothing but sowing the seed, sowing the whatever money you are giving, you are sowing it in the land. और यहाँ पर पौलुस बताता है जो कुछ भी आप देते हैं वो एक प्रकार से वहां पर आप बीज बोते हैं। See, whenever a farmer is sowing, he will not sow sparingly. He will not sow one seed here, one seed there, one seed somewhere other place. और जब किसान बोता है तो एक बीज यहाँ पर, दूसरा बीज दूसरी जगह पर, तीसरा बीज तीसरी जगह पर, थोड़े थोड़े बीज नहीं बोता। He sows in a disciplined manner. बहुत ही शिस्त रीति से, बहुत ही नियम से वो बोता है। So he sows as much as the land can bear it. और भूमि जिसको ग्रहण कर सके वैसी मात्रा में वहां पर वो बीज बोता है। That's why Paul is telling those who sow sparingly shall reap also sparingly. और इसलिए पौलुस कहता है जो बहुत ही उदारता से देता है वो कटनी भी बहुत ही उदारता से करेगा। But those who sow bountifully shall also reap bountifully. और बहुत ही अच्छाई से, भरपूरी से अगर बोता है वो पाएगा भी बहुतायत से। So if you give, it shall be given back to you. अगर आप देते हैं तो आपको वापस मिलेगा। This is the principle of God. परमेश्वर का ये नियम है, सिद्धांत है। That's what Lord Jesus Christ told to his disciples. और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से यही बात कही। If you want more blessings from the Lord, you need to learn to give to those who are in need. परमेश्वर से अगर अच्छी और ज्यादा आशीष पाना चाहते हैं, आवश्यक है कि आप वहां पर बहुत ही संख्या में, बहुत ही रूप से, बहुतायत से दूसरों को दे। Turn to Luke's Gospel 6th chapter. लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। There Lord Jesus Christ is telling this principle to his disciples. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस सिद्धांत और नियम के बारे में बताता है। 38th verse. उसका 38 पद। Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, running over shall men give into your bosom, for with the same measure that ye made withal, it shall be measured to you again. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। So this is the principle of giving and taking, or giving and receiving. और देने का और उसके द्वारा प्राप्त करने का परमेश्वर के वचन के अनुसार ये नियम और सिद्धांत है। If you do not sow this seed, you will not receive also. अगर ये बीज को आप नहीं बोते तो आप आशीष भी नहीं प्राप्त कर सकते। If you are sowing in little measure, you will receive in little measure. बहुत ही कम मात्रा में अगर देते हैं तो आपको भी बहुत ही कम मात्रा में वो वापस मिलेगा। But when you are giving wholeheartedly, लेकिन पूरे हृदय के साथ जब आप देते हैं, according to whatever you have determined, आपने जो कुछ भी निश्चय किया है इसके हिसाब से, what God is going to do with that kind of sowing? तो जो बीज बोया गया है उसको परमेश्वर क्या करेगा? He will return it back with great measure. It is written down. He will give it in good measure, pressed down, shaken together, and running over. और यहाँ परमेश्वर का वचन दिखाता है कि हिला हिलाकर उभरता हुआ आपकी गोद में वो डालेगा। So that is the blessing God will give to those people who are sowing this seed of prosperity, of the
money that God has blessed upon you. परमेश्वर ने आपको जो वित्तीय संसाधन दिए हैं, वो जब आप पूरे हृदय से दूसरे को देते हैं, तो वही माप से और बहुत ही उभरा कर, हिला हिला कर परमेश्वर आपको वो वापस देगा, वो आशीष आप प्राप्त करेंगे। Dear brothers and sisters, this is the opportunity. In these days, we are seeing many people are in difficulty because of this virus. और प्रिय भाई और बहनों, इस महामारी के समय में, ये वायरस के समय में कई लोग ऐसे दरिद्र है, कई लोग आवश्यकता में है, जिनको इस सारी चीजों की आवश्यकता है। People are not having even food to eat also. लोगों को खाने के लिए कुछ खाना भी प्राप्य नहीं है। There are people who are vacating their places of work and going back to their own villages or own towns. कई लोग अपना जो घर है वो खाली करके अपना जो वतन है वहां की ओर दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है। They don't have money to eat. They have lost their jobs and they are dire need of all these finances. खाने के लिए कुछ खाना नहीं है और जीने के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए जहां अपना जो हमवतन है वहां की ओर वे लोग दौड़ रहे हैं। When we are seeing such a condition, what is our response? और जिस प्रकार से इस परिस्थिति को हम देखते हैं, हमारा प्रतिभाव वहां पर क्या है? Are we responding accordingly to our own people? Leave around other people who are in this world, but those people who are in our churches, who are believers, who are our relatives, who are our near and dear ones. इस संसार में जो लोग हैं उसको शायद हम भूल जाए, लेकिन हमारी कलीसिया में वैसे जो लोग आवश्यकता में है, इसके प्रति, वैसी परिस्थिति में जी रहे हैं, इसके प्रति हमारा प्रतिभाव क्या है? We have to respond in such conditions. ऐसी परिस्थिति में हमें वहां पर प्रतिभाव उत्तर देना है। If you turn to Ecclesiastes 11th chapter again, आइए फिर से एक बार सबोपदेशक उसका 11 अध्याय। There we are seeing that the word says that throw your bread upon the waters and after many days you will receive it back. और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर दिखाती है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। It is not going to waste. Whatever seed you are sowing through your money, it is going to come back to you one day. जो भी बीज जो आप बो रहे हो, आपका जो वित्तीय संसाधन है, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, व्यर्थ नहीं जाने वाला, आपके पास वापस लौटा आएगा। Turn to Proverbs 11th chapter. आइए नीति वचन और उसका 12 अध्याय। 11th chapter 24 and 25th verse. नीति वचन और उसका 11 अध्याय 24 और 25 24 और 25 पद। पढ़िए भाई। ऐसे है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। Yes, please read. उदार प्राणी रुष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। See, this is the principle of God, that he that is scattereth, that is he that giveth to the poor, he will be paid back. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ बताती है, जो गरीब है, जो दरिद्र है, उनको जो देते हैं वो वैसी रीति से ही वापस पाएंगे। God is going to bless them. परमेश्वर उनको आशीष देने वाला है। That's why let us keep this in our mind. और इसीलिए इस बात को हम बहुत ही भली भांति अपने स्मरण में रखें। That we need to sow the seed of the blessings that God has given to us. परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है, वो हम उसका बीज हम बोने की कोशिश करें। Third seed that we see in this in the word of God is, परमेश्वर के वचन में जो तीसरा प्रकार का बीज जिसको बोने की बात है, I and you can sow in this world is the good works that we can do in this world. इस संसार में अच्छे और भले काम बीज के रूप में हम बोए। Not the what you call the old life that we lived, but we need to sow good works because we could belong to a Father who is kind, who is merciful, who is gracious, and who is what you call forgiving. जो पुराना जीवन के रूप में थे वो नहीं, लेकिन जो हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जो अनुग्रहकारी, दयालु, भलाई और विश्वास योग्यता से भरपूर है, उसके काम हम बीज के रूप में बोए। Since we are the children of the living God, we are the children of that heavenly Father,
we need to show forth the qualities of our God in this world. हम जीवंत परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है उसके संतान है, इसीलिए हमें यह शोभा देता है उसके अनुसार हम काम करें और इस प्रकार का बीज बोए। That's what our Lord is telling in Matthew's Gospel, 5th chapter, 45th verse. और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 45 पद में प्रभु का वचन हमें यही बताती है, That ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। So we need to do the good works when we are in this world. इस संसार में जब परमेश्वर ने हमें रखा है, यह आवश्यक है कि हम भले काम करें। Yeah. So when we are in this world, we need to show good works. और इसीलिए जब इस संसार में है तो हमारे लिए ये आवश्यक है, हमारे से अपेक्षा की जाती है कि हम भले काम करें। Galatians 6th chapter, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 9th verse. और उसका 9 पद। And let us not be weary in well doing, for in due season ye shall reap if we faint not. हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। So we need to not be weary. That means should not be leave doing good things, but we should always continue doing good things in this world. हम भले काम करने में साहस न छोड़े, हम ढील न बरते और जो भले काम है वो हम करते रहे। In Hebrews 13th chapter, we are seeing that unknowingly those people who are doing good works, they have entertained angels also. इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूत को अपने घर पे रखे। Good works in this world, और इस संसार में भले काम करते रहे, we will be replenished by our Lord. तो परमेश्वर की तरफ से हमें इसका पूरा बदला मिलेगा। If you turn to Matthew's Gospel 25th chapter, अगर मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय की ओर देखें, there we are seeing a kind of people. वहां पर किस प्रकार के लोग को हम देखते हैं। There Lord Jesus Christ is talking to those people. और वैसे वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह वो लोगों के साथ बातें करता है। And he is telling them these words. उनको ये वचन बताता है। 34th verse, 25 to 34. और 25 अध्याय और उसका 34 पद। Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and he gave me meat. I was thirsty, he gave me drink. I was stranger, and he took me in. Naked, and he clothed me. I was sick, and he visited me. I was in prison, and he came unto me. मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 34 से 36 पद। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। So Lord Jesus Christ is speaking to the people who are on the right hand side of his kingdom or on the judgment day. और न्याय शासन के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के दाहिने ओर जो लोग हैं, उनको प्रभु हमारा ये कहेगा। He is telling to them, you have taken care of me in every situation. और प्रभु यहाँ पर कहता है, हर एक परिस्थिति में आपने मुझे संभाला, मेरी सुधि ली। Whatever he has told, whatever we have read now, they have been doing those things to the people of this world. और जो यहाँ पर प्रभु बताता है वो हमने इस संसार में रहते हुए दूसरे लोगों के लिए किया है। They are the righteous people.
वो धर्मी लोग हैं, They have sown the seed of good deeds, अच्छे काम के, भले काम के बीज उन्होंने बोए हैं, but they are unaware of those good deeds what they have done. और उन्होंने जो कुछ भी काम किए हैं इसके बारे में वो अनजान थे। See, they are telling in 37 verse onwards, when did we do all these things to you? और 37 पद में अनजाने होते हुए वे धर्मी लोग उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया। So they are telling, when did we give you food? When did you give you water to drink? When did you take care of your clothing? When did we visit you in the prison? When did we see you in sickness? और ये भले धर्मी लोग वहां पर प्रभु को कहते हैं, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पानी पिलाया, कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। That means we can say these attitudes of these people was inbuilt in them. They are not doing for the sake of doing. It is a habit for them. और इससे हम ये बात को प्रतीत करते हैं कि उनके जीवन में अनजाने में ये कहते हैं, वो उनके लिए एक प्रकार की टेव बन गई है, और वहां पर वो कुछ एटीट्यूड ऐसा ही बता रहे हैं। So I and you should come to this attitude that whenever we are doing something good in this world, showing the kindness, love and the mercy and grace of God, it should be automatic. It should come within from us automatically. और इसीलिए परमेश्वर के संतान होने के नाते हमसे ये अपेक्षा की जाती है, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी भलाई, उसकी विश्वास योग्यता सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं संचालित रूप से हमारे जीवन में से उभरनी चाहिए। These righteous people who have done this good work, they were asked to enter into the kingdom of God. ये धर्मी लोग जिन्होंने ये भले काम किए, उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए बताया गया। So we see also the unrighteous people what they have done. और जो अधर्मी लोग हैं उनका क्या हुआ वो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। It was just opposite. बिल्कुल विरुद्ध रूप से वहां पर हम देखते हैं। They were thrown into the lake of fire. वहां पर उनको अग्नि की ज्वाला में डाला गया। This is the third thing we are seeing, that we need to show forth the qualities of our Lord, our Father, Heavenly Father. और तीसरी बात जो हमने देखा, हमारा स्वर्गीय पिता की जो लाक्षणिकता है, उसका जो गुण धर्म है, ये हम बताना चाहिए। See, when we are living this world, जब इस संसार में हम जी रहे हैं, when we leave this world, जब इस संसार को छोड़ के हम चले जाएंगे, we do not take anything with us. हमारे साथ हम कुछ लेके नहीं जा सकते। Paul says, we brought nothing into this world and we are taking nothing from this world. पौलुस कहता है, इस संसार में हम कुछ लाए भी नहीं है और लेके भी नहीं जा सकते। But one thing we are going to take with us. लेकिन एक ही बात हम हमारे साथ ले जाएंगे। See, according to Revelations 14th chapter 13th verse, और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 13 पद के अनुसार the word of God says that परमेश्वर का वचन ये बताती है, their labors shall follow them. उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। See, 13th verse, and I heard a voice from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth, yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors and their works do follow them. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 13 पद के अनुसार, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु से मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। So here we are seeing nothing goes with us, but only the good works that we are doing, the good works that we sow in this world, they are going to follow us. और यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे साथ हम कुछ भी नहीं ले जा सकते, सिर्फ जो अच्छे काम, भले काम किए हैं, वे ही हमारे साथ हो लेते हैं। And fourthly, चौथी बात, can I take another 5 minutes? Sure, brother. So fourth thing, the fourth seed that we can sow in this world is, और चौथा प्रकार का जो बीज हम इस संसार में बो सकते हैं वो ये है, we can see that in
John's Gospel, 12th chapter. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, And I am reading 24th and 25th verse. 24 और उसका 25 पद। John's Gospel, 12th chapter, 24 and 25. Yohana- Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life on this world shall keep it unto life eternal. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 24 और 25 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। So we know all that Lord Jesus Christ was speaking about his own life. और हम देखते हैं, जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में यहाँ पर बता रहा था। He is telling that he is going to be buried, he is going to go through the cross, and he is going to lay down his life for all of us. और यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताती है, अपने चेलों से बात करते हुए ये प्रभु बताता है कि वो हमारे लिए मरने वाला है, क्रूस की मृत्यु को वह सहन करने वाला है। He is comparing his whole life to a corn of wheat. अपने जीवन को गेहूं के दाने के साथ उसकी तुलना करता है। So once the wheat, corn of wheat falls into the ground, और जब गेहूं का दाना इस भूमि में पड़ता है, unless it die, it will not bring forth any fruit. जब तक वो मरता नहीं, कुछ फल नहीं दे सकता। When it dies, then only life comes into it. जब वो मृत्यु पाती है तभी वहां से जीवन निकलती है। So Lord Jesus Christ was telling that I am going to die and bring forth many children. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताता है कि मैं मृत्यु पाने वाला हूं, ताकि मेरी मृत्यु के द्वारा कई जीवन बाहर प्रकट होंगे। That's what Lord Jesus Christ is speaking to his disciples. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात कर रहा है। He is speaking to us also today. आज शाम को हमारे साथ भी प्रभु यही बातें करता है। Unless we die for the sake of the kingdom of God, for the sake of our Lord Jesus Christ, we cannot bring forth souls unto the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए जब तक हम नहीं मरते तब तक हम फल नहीं दे सकते। So Lord Jesus Christ was talking to disciples in Matthew's Gospel 29th, Matthew's Gospel 10th chapter, from 35 verse onwards we see, if you want to follow me, take up your cross and follow me. मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 35 से आगे प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर आप मेरे पीछे होना चाहते हैं, अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे हो लो। They that want to save their life, they will lose their life. They that lose their life for my sake, they will gain it for eternity, forever. जो अपना प्राण खो देता है वो उसको बचाएगा, और जो उसको बचाएगा वो अपने प्राण को आहुति दे देगा। See, we see in the history of the people of God, in the first church, when we are seeing, when Stephen was martyred for Lord Jesus Christ. और परमेश्वर के वचन में जो प्राचीन कलीसिया है उसको अगर हम देखें, जब स्तिफनस को वहां पर शहीद किया गया, He was the first man to be martyred for Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद होने वाला वो पहली व्यक्ति था। For his faith he was martyred. उसके विश्वास के लिए उसको वहां पर शहीद होना पड़ा। After his death, उसके मरने के बाद immediately we are seeing that Paul, Saul the apostle, he confronted God and he was chosen by God. और शाऊल जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां पर संघर्ष किया और उसका सामना किया, वो प्रभु के लिए एक बड़ा प्रेरित बना। And because of the ministry of the apostle Paul, we are seeing so many churches in England, so many people came to know Lord Jesus Christ. और पौलुस के जीवन के द्वारा और उसका जो सताव हुआ, उसके जीवन के द्वारा कई कलीसिया खड़ी हुई, कई बड़े रूप में प्रभु का राज्य का विस्तार हुआ। It was possible because of the martyrdom of Stephen. स्तिफनोस की शहीदी के कारण ये सब फल निकल आए। Because Saul was taking care of the
clothes of Stephen in that place. He was a witness, and he was he was also part of the murdering gang. और शाऊल जो वहां पर शहीद होने वाले थे उसके वस्त्रों को वहां पर रखता था और इस प्रकार से बहुत ही विरोध का कार्य करता था जहां पर स्तिफनुस शहीद हुआ था। And because of his martyrdom, the word of God spread, and many people came to know through Saul's ministry, and he became a great testimony for Lord Jesus Christ. और स्तिफनुस की शहीदी के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा पौलुस शाऊल जो पौलुस बना और उसने बड़ी बड़ी कलीसिया की स्थापना की और प्रभु का राज्य का विस्तार हुआ। And we also know about the disciples. बहुत ही भक्कम बनी। We also know about the disciples of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में भी हम जानते हैं। They went to different continents. और भिन्न भिन्न प्रकार के खंड में वहां पर वे इधर उधर बितर गए। And they cared not for their life. अपने जीवन की उन्होंने परवाह नहीं की। All except John the Baptist, John the disciple were martyred. प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था यूहन्ना, उसको छोड़कर सभी प्रभु के चेले शहीद हो गए। Because of their ministry, because they were slain, they laid their life as a grain of wheat in the ground. They died and they brought forth many souls unto the kingdom of God. उनकी सेवा के कारण, उनकी शहीदी के कारण, जिस प्रकार से गेहूं के बीज को बोया जाता है, उन्होंने भी अपना जीवन वहां पर बोया ताकि प्रभु का काम, प्रभु का जो राज्य का विस्तार है वो हो सके। The love of God constrained them to lay their life. परमेश्वर का प्रेम उनके ऊपर फर्ज पड़ता है कि वो दूसरे को प्रेम करे। That's what we see in Paul is writing in Romans 8 chapter 35 verse onwards. रोमियो की पत्री 8 और 35 में वहां पर पौलुस इस बात को बताता है। That who can separate us from the love of God? परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? Because they have tasted the love of God, they are ready to lay down their life for the sake of God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का प्रेम चखा है और इसी वजह से अपने जीवन की वहां पर वो आहुति दे सकते हैं। Unless our tastes, unless our desires, unless our everything becomes dead in the sight of God, we cannot bring forth much fruits to the Lord. परमेश्वर की दृष्टि में जब तक हमारी कोई परीक्षा, हमारी इच्छा और हमारी अपेक्षाओं को बोई नहीं जाती, उसकी मृत्यु नहीं होती, हम परमेश्वर के लिए फल नहीं ला सकते। And last one we'll see it quickly. और बहुत ही जल्दी से हम अंतिम बात को देखेंगे। The fifth seed that you can sow is the skills that God has given to you. और पांचवी बात, परमेश्वर ने हमें जो दान दिया है उसके बारे में। No, not done. Skills. Nipunata. Kaushalata. So see, when we are living in this world, we are trained or we are given a talent to make our living in this world. और जब इस संसार में रहते हैं तो हमारा जो कौशल्य, हमारी जो निपुणता है वो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम some are doctors, some are engineers. Some are engineers. कोई डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं। Some are doing different jobs in offices. और भिन्न भिन्न कचेरियों में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। Some are farmers. और कई लोग किसान हैं। So whatever God has given you, this talent or this skill, जो भी कौशल्य परमेश्वर ने आपको दिया है, we need to utilize it to the utmost. इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हम इसका इस्तेमाल करें। We have to sow that seed what God has given to us. परमेश्वर ने हमें जो बीज दिया है उसको हम बोने की कोशिश करें। If you turn to Genesis 26 chapter, आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 26 अध्याय में, here we are reading about Isaac. यहाँ पर हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं। See, I will read the first verse. और पहला पद हम पढ़ेंगे। And there was famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham, and Isaac went unto Abimelech, king of Philistines, unto Gerar. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 अध्याय और पहला पद, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। So here we are seeing in verse 12, then Isaac sowed in that land and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him.
और 12 पद में हम पढ़ते हैं, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। See, in a third verse, God is meeting Isaac. तीसरे पद में परमेश्वर इसहाक से मिलता है। He says to him, वहां पर परमेश्वर इसहाक को क्या कहता है? see, first we'll read second verse. And the Lord appeared unto him and said, Go not down into Egypt, dwell in the land which I shall tell thee of. पहले हम दूसरा पद पढ़ेंगे। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। Sojourn in this land, and I will be with thee, and I will bless thee, for unto thee, unto thy seed, I will give all these countries. तीसरा पद, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसी में पूरा करूंगा। Many times, whenever difficulties come in our life, many times when difficulties come in our life, hello, Yes, can you hear me? yes brother. Can you hear me, brother? Yes brother, proceed. Many times when we get into problems or when there are difficulties in our life, जब हमारे जीवन में किसी प्रकार के प्रश्न और मुश्किलें आती है, we also think in our own terms. We do not depend upon God. We do not want to go to Him, take His advice, know His will. हम अपनी रीति से सोचने लगते हैं, परमेश्वर के पास जाना और उसके साथ सलाह मशवरा करना वो हम नहीं करते, लेकिन हम अपनी रीति से जीना चाहते हैं। See, we see that there are many famines in the Word of God. परमेश्वर के वचन में कई अकाल के बारे में बताया गया। Even when the time of Judges, we see in Ruth first chapter that there was a famine. Elimelech with his family, he made his own arrangement, went into the land of Moab. और न्यायियों के समय में भी अकाल पड़ा था। रूत का पुस्तक की अगर हम देखें तो वहां पर अकाल पड़ा और वहां अलीमेलेक वो दुकाल के कारण, अकाल के कारण वहां बेथलेहम से चल निकला। And he went there, he stayed in that place, and we see after some time their children, she lost her husband, she lost her children. The word of God says she was bereft of all whatever she had. और अलीमेलेक वहां से अकाल के कारण निकलने के बाद वहां पर उसका जो पति है वो भी चल बसा, उसके दोनों संतान वो भी चल बसे और उसने सब कुछ गंवा दिया। That is Naomi's husband. वो नाओमी का पति अलीमेलेक था। She was bereft of all the blessings that God has given to her. परमेश्वर ने उनको जो कुछ भी आशीष दी थी वो सब उसने गंवा दिए। So even in the time of Abraham, we are seeing अब्राहम के समय में भी हम देखते हैं that Abraham, when famine came, he went into Egypt. जब अकाल आया तो वो मिस्र में चला गया। He had to undergo some problems. I don't want to discuss that. But here again famine is coming, and now Isaac is also taking something like that decision. और अब्राहम के समय में जो अकाल पड़ा, कई मुश्किलों में से वहां पर उसको गुजरना पड़ा। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ पर देखना नहीं चाहते, लेकिन इसहाक के जीवन में यहाँ पर जो 26 अध्याय में अकाल आया तब भी वहां पर उसको किसी निर्णय को ऊपर आने को वहां पर वो सोच रहा था। What is God telling here? लेकिन परमेश्वर उसे क्या बताता है? He says, "Go not down to Egypt." यहाँ पर परमेश्वर का वचन उसे साफ बताता है कि तू मिस्र में मत जा। Dwell in the land which I shall tell thee of. जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। So when we stay in the place which God tells us to stay, परमेश्वर हमें जो स्थान बताता है वही स्थान में जब हम रहते हैं, then there is blessings. तब वहां पर आशीष हमारे लिए है। If you do not heed the will of God, you do not heed the voice of God, we go into loss in our lives. हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की वचन को और उसकी वाणी को नहीं सुनते तब हमारे को सब कुछ गंवाने को होता है। So dear brothers and sisters, here we are seeing
even though there were difficulties in the life of Isaac, many wells he dug, they were all shut. But ultimately we are seeing whatever, he was a farmer, and whatever talent he had, he sowed in that land and he reaped 100%. प्रिय भाइयों और बहनों, इसहाक के जीवन में जब यहाँ पर अकाल आया, उसको भी ऐसा लगा होगा कुछ न कुछ करे, लेकिन वहां पर वो उसके पास जो कौशल्य था, इसके हिसाब से उसने जो कुछ भी बोया, वहां पर उसने फल पाया। Because he stayed in the place where Lord wanted to bless him. परमेश्वर जहां पर उसको जो स्थान में आशीष देना चाहता था, वहां पर इसहाक डटा रहा। God doesn't want that we take the worldly way. We go to the परमेश्वर Egypt. परमेश्वर नहीं चाहता कि सांसारिक रूप से हम मार्ग को ग्रहण करें और इस मिस्र में चले जाए। Many times even believers also try to do the worldly way to acquire wealth, to become rich. कई बार हम मसीहियों को, विश्वासियों को देखते हैं, धनी बनने के लिए जो इस संसार का जो रास्ता है वो ग्रहण करते हुए अपने जीवन में कई कुछ मुश्किलियां खड़ी करते हैं। We have to be in the covenant, in the covenant like Isaac. God is telling, if you stay here, I am going to bless you like I blessed your father. परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ, वो उसको स्मरण देता हुए इसहाक को प्रभु बोलता है कि जो तू यहाँ पर रहेगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। Third verse, last part, it says, I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father. और उत्पत्ति 26:3 अध्याय का अंतिम हिस्सा, जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी, उसे मैं पूरी करूंगा। So that's what God is promising to each one of us also. और इसलिए परमेश्वर हमें इस सारी वाचाओं को हमारे के लिए दिया है। James is cautioning the believers. याकूब वो मसीही लोगों को, विश्वासियों को एक चेतावनी देता है। Don't say that I will go into such and such place and I will trade there and I will become rich. I will do this thing, I will do that thing. और वहां पर चेतावनी देते हुए कहता है कि ऐसा मत बोलिए कि मैं यहाँ पर जाऊंगा और व्यापार और व्यवसाय करूंगा, वहां पर बहुत पैसा कमाऊंगा। But say that if it is the will of God, I am going to do such and such thing. लेकिन हम यही कहे कि अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मैं ये या वो करूंगा। So whatever talent God has given to you to survive in this world, to make a living in this world, do that with wholeheartedness. इस संसार में परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी कौशल्य, निपुणता दी है, उसके हिसाब से हम करते रहे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। Like a servant, like the word of God says in Colossians 3rd chapter last verses, that like a servant, we should do it as unto the Lord, not for men pleasing. कलोसियों की पत्री 3 अध्याय अंतिम पद में हम पढ़ते हैं, पौलुस हमें बताता है कि दास के रूप में हम रहे, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम जिए। So whatever we do, whether we are eating or drinking, whatever we are doing, do it for the glory of God. हम जो कुछ भी करें, खाए या पिए, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। So I want to just concise all that I have discussed today. और आज हमने जो कुछ भी सुना है, इसको बहुत ही संक्षिप्त रूप से हम देखना चाहेंगे। Let us test our own lives. हम अपने जीवन की परीक्षा करें। What seeds we are sowing in this world. किस प्रकार के बीज को हम इस संसार में बो रहे हैं। Whatever seed you sow, it will be reaped. जिस प्रकार का बीज हम बोएंगे, वैसा ही हम परिणाम प्राप्त करेंगे। For every action, there is an equal and opposite reaction. और जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया होती है। Every deed has a consequence. जो कुछ भी कार्य करते हैं, उसका परिणाम भी होता है। So we need to sow righteous seeds in this world, good seeds in this world. इस संसार में हमें धर्मी और अच्छे काम को बोना है। First seed is the word of God. पहला जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। We need to sow it because it is the commandment of God. हमें ये बोझ को बोना है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है। And we are going to reap abundantly. और वो हम वहां पर कटनी भी बहुतायत से करेंगे। And we should leave the result in the hands of God. परमेश्वर के हाथ में इसके परिणाम को हम सौंप दें। Definitely we are going to come back with sheaves in our hands. हमारे हाथ में बहुत ही भरपूरी से हम वापस पाएंगे। Secondly, दूसरी बात, we have seen that whatever blessings that God has given to us, whatever
money that God has given to us, we need to sow it in our own places where it is required. परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है, जो वित्तीय संसाधन दिए है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए बीज के रूप में हम बोए, जिसको आवश्यकता है उनको हम प्रदान करें। Give and it shall be given back to you. हम देते रहे तो हमको वापस भी मिलेगा। That is the principle of God. परमेश्वर का ये नियम है, सिद्धांत है। Lord Jesus Christ also said one more thing. प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात बताई, Lay not your treasures upon this earth. इस संसार में हम मिलकत को वहां पर हम न संचित करें, Let lay your treasures in heavenly places. लेकिन स्वर्गीय स्थानों में हम सब धन इकट्ठा करें। So when we sow in this world, we are laying it in heaven. जब हम यहाँ पर बोते हैं, हम ऊपर छोड़ेंगे, Then we receive reward accordingly. और वैसी रीति से हमें वहां बदला भी मिलेगा। Thirdly, तीसरी बात, good works. अच्छे काम। Like our heavenly Father, we should show forth the qualities of our heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने जो काम किया, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी लाक्षणिकता है, उसको हम प्रकट करें। We will be abundantly blessed when we sow the good seeds in this world. We are not going to take anything from this world. Our labors will come follow us. Our works will follow us. और ये जो बीज जो अच्छे काम के रूप में हम बोते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन बताती है, हम कुछ भी नहीं ले जा सकते, अच्छे और भले काम ही हमारे साथ आते हैं। Fourthly, चौथी बात, our self should die. हमारा जो स्व है, हमारा जो खुद है, वो मरना चाहिए। It should fall into the ground, it should die, and then only it is going to bring forth much fruit. वो भूमि में मृत्यु उसकी होनी चाहिए, तभी उसको फल आएंगे। We have seen the example of Stephen. We have seen the example of Saul the Paul, and also the disciples. हमने स्तिफनुस का उदाहरण देखा, पौलुस का देखा, और जो दूसरे जो चेले थे, जिन्होंने प्रभु के लिए सहन किया, शहीदी वहां पर उन्होंने बरती। Fifthly and lastly, अंतिम बात, पांचवी, our skills that God has given to live upon this world. इस संसार में रहने के लिए, हमारे जीवन निर्वाह के लिए परमेश्वर ने हमें जो कौशल्य दिया है, उसके बारे में। Whether you are a doctor, whether you are an engineer, whether you are a God servant, whether you are in a private job, whatever God has given to you, do it wholeheartedly as unto the Lord. और अगर आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रभु के दास है, जो भी परमेश्वर ने आपको कौशल्य दिया है, उसके प्रमाण से परमेश्वर को आनंद होए, वैसी रीति से पूरे हृदय से इसको हम बोए। So we see whatever a man soweth, that also shall he reap. मनुष्य जो कुछ भी बीज बोता है, वैसा ही वो कटनी काटेगा। May God bless these words for our spiritual edification. हमारी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर इस वचन को बहुत ही धन्य बनाए, आशीषित करे। Sorry, I have taken some 10-15 minutes more because I wanted to cover all the points. Thank you very much, brother. Thank you, brother. Thank you. Thank you. See you. हमारे भाई अरविंद सूर्यवंशी हमें अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर यहोवा बाप, हम आपके आभारी हैं, आपके स्वर्गीय प्रेम के लिए हम आपके आभारी हैं, आपके स्वर्गीय वचन के लिए हम आपके आभारी हैं। पिता परमेश्वर, आपके जो स्वर्गीय विचार हमारे सामने आपके दास हमारा भाई जया कुमार के द्वारा हमारे सामने प्रकट किए, हम आपको हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। ये बात सच है प्रभु यीशु, आपकी दया होने से आपने हमें चुना और ये प्रकट किया कि जो बीज आप रोजी मनुष्य के अंदर बोना चाहते हो और जो बीज किस रीति से होना है, इस बीज के द्वारा
परमेश्वर की महिमा कैसा होना है, इस भेद को आपने हमारे सामने प्रकट किया। हम धन्यवाद दे रहे हैं। स्वयं आपका वचन ही हमारे लिए बीज है। वो वचन हमारे जीवन में कैसा बोया जाता है, इस भेद को भी प्रभु जी आपने प्रकट किया। और बीज के द्वारा ही आपकी प्रभु जी महिमा हो सकते हैं। हम मनुष्य है, कितने बार प्रभु जी हम देखते हैं आपके लोग कहलाते हुए भी हमारे जीवन में हम फेल हो रहे हैं। लेकिन बाप, हम धन्यवाद दे रहे हैं आपके स्वर्गीय वचन के लिए। आप ये प्रकट कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के लोग किस रीति से आपने हमें बीज के रूप में प्रभु जी ये प्रकट करना जीवन को, और हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने में आप सहायता कीजिए। धन्यवाद दे रहे हैं आज के दिन के लिए। आपके दास की सेवकाई के लिए भी हम धन्यवाद दे रहे हैं। आपके दास के साथ भी आप रहो। भाई रुबेन को भी ट्रांसलेशन करने में दया की धन्यवाद देते हैं। हर बात में आपको प्रथम स्थान दे रहे हैं। धन्यवाद प्रार्थना को ला रहे हैं प्रभु मसीह के नाम से सुनना और ग्रहण कीजिए बाप। आमीन। हमारा प्रभु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता जो यहाँ पर हम बैठे हैं वो और परमेश्वर के लोग विश्वव्यापी कलीसिया में और जहाँ कहीं हैं उनके साथ अभी भी हो, युगान युक्त होते रहे। आमीन। Praise the Lord, buddy. प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। Thank you for giving this time. Sorry, I could not come last time. Oh, no problem, brother. My health was not good. That's why I Yeah. could not come. Yeah, brother. क्षमा कीजिए। नहीं, ओके ब्रदर, थैंक यू वेरी मच आपकी Thank you, सेवा के brother. लिए। Thank you. Thank- Thank you, bye. ओके, ओके ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord.